ہمیں آج یہ وہ صلیبی کلمہ ہے جب یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کہا، اور یہ سب سے پہلے یسوع مسیح نے کہا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اور جب ہم اس کو یونانی میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کہتا رہا، یعنی جب جب یسوع مسیح کے ساتھ برا ہوا، جب جب یسوع مسیح کو ستایا گیا، کوئی آ رہا ہے یسوع مسیح کے آگے تماچا مار ہے، تو یسوع نے اس کی معافی کے لیے باپ سے کہا کہ باپ اس کو کیا کر، معاف کر۔ کوئی آیا، اس نے آ کے یسوع مسیح کے اوپر تھوک دیا، مطلب جو یسوع کے ساتھ برا بھلا کچھ بھی کرتے رہے، وہ یسوع مسیح ان کے لیے باپ سے معافی مانگتے رہے کہ باپ اس سے یہ نہیں جانتا۔ آپ کو میں ایک بات آج سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ جانتے کہ یہ مسیح ہے تو وہ مسیح کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ اس لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مسیح ہیں، اس لیے اطمینان سے مسیح کی باتیں سن رہے ہیں کیونکہ ہم مسیح کو مانتے ہیں۔ تو وہ مسیح کو جانتے نہ مانتے تھے، اس لیے وہ مسیح کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، اور مسیح نے کہا کہ باپ یہ نہیں جانتے یہ جو کر رہے ہیں۔ آج ہم جو اصل میں جو سیکھنا وہ ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے وہ معافی کا ٹاپک نہیں ہے، بات کچھ ہو رہا ہے کہ یسوع ان کے لیے یہاں پہ شفاعت کر رہے ہیں، یسوع ان کے لیے باپ سے دعا کریں، باپ سے ریکویسٹ کریں کہ باپ یہ جو لوگ ہیں یہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کا بہیو کر رہے ہیں، اس طرح سے یہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو یہی بات سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو اس طرح اس معیار پہ لے کے آنا ہے، کیونکہ میں کس کو مانتا ہوں؟ مسیح کو۔ تو مسیح جو تھا وہ ان کو بھی معاف کر دیتا تھا، ان کے لیے بھی باپ سے معافی کی دعا کرے، ان سے کرے کہ باپ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ یہ شخص، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ہم اس مسیح کو مانتے ہیں، اور مسیح تو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا کرتے۔ اب جب میں مسیح کو مانتا ہوں، مسیح کو فالو کرتا ہوں، تو ایکچولی میں یاد رکھنا یہ معافی ان لوگوں کی تھی، یہ معافی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوایا، یسوع مسیح کو مصلوب کیا، یسوع کی مطلب جو یسوع کے ساتھ جو کر سکتے تھے نا، وہ سب اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کی، غریب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فوجی ہیں، جو کچھ بھی تھے، یسوع کو مصلوب کرنے میں کسی طرح سے بھی ان کا ہاتھ تھا، ان سب کی معافی تھی، ان سب کو معاف کیا گیا۔ لیکن یسوع نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں باپ سے منت کی، ان کے حق میں باپ سے درخواست کی۔ آج سیکھنا یہ ہے کہ مان لو اگر مسیح ان کے لیے معافی کی دعا نہیں کرتے، ان کے لیے شفاعت نہیں کرتے، تو کیا ان کی معافی ہوتی؟ جتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا، جتنا بڑا انہوں نے پاپ کر دیا، جتنی بڑی ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی معاف نہیں ہوتی اگر مسیح ان کے لیے معافی کی دعا نہ کرتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی جو سٹڈی ہے، آپ جن کو معاف نہیں کرو گے نا، بائبل کی سٹڈی بتا رہا ہوں میں، بائبل کی سٹڈی یہ ہے کہ ایک ایماندار اگر اس کا کسی نے قصور کیا ہوا ہے، اگر وہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ بائبل کی سٹڈی ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے قصور تم معاف کرو گے، ان کے قصور معاف کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا گناہ کیا ہے، آپ اس کو معاف کریں، اس کے لیے شفاعت کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو ایماندار ہے وہ شفاعت کے لیے بلایا گیا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں، وہ بلکہ دوسروں کی شفاعت کے لیے، میں سیدھے سے کہوں گا، میں آسان کر دوں، وہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ آمین۔ خدا کے خادم کہہ رہے تھے کہ خدا اگر کسی ملک کو جب بیدار کرتا ہے، وہاں پہ دعائیہ مذہب پہلے
होते हैं। वहाँ पे लोग जो ईमानदार हैं वो दुआ में पहले खड़े होते हैं, पहले एक होता है, फिर दो, फिर यूं करते करते एक मजबा बन जाता है दुआया। हालेलुया। आज जो बहुत सारे मुल्क 99% अगर वहाँ पे क्रिश्चियन है, तो अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पे एक भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी क्रिश्चियन नहीं था। दूसरे मुल्क से क्रिश्चियन उस मुल्क में गए। आज 99% वहाँ पे क्रिश्चियन। कैसे हो गया? दुआ की वजह। मैं खादिम को जानता हूं, उन्होंने जब दुआ की तो उन्हें एक मिशन दिया गया था, और वो मिशन दिया था कि उन्होंने उस मुल्क को बदलना है। एक खादिम को ये मिशन देके भेजा था कि तूने क्या करना है, पूरा मुल्क बदलना है। और उस मुल्क में एक भी क्रिश्चियन नहीं था। एक उनके हाथ में बाइबल थी और कुछ भी नहीं था, और बदन के ऊपर एक सूट था बस। निकल पड़े। जब वो गए तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये मुल्क बड़ा सख्त है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मेरी डेथ हो जाए। उसने कहा नहीं, मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं दुआ करूंगा। पहले एक दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, करते करते सालों साल वो मजबा से उठता ही नहीं था। जब 2-4 साल वो उस मजबा पे बैठा रहा, पता नहीं किधर किधर से एवेंजलिज्म में टीमें आई दूसरी कंट्री से, और आज वो मुल्क 99% नहीं 100% वहां पे क्रिश्चियन हो गए। एक शख्स ने, और जब उसने दुआ शुरू की तो आप जानते हैं ये लकड़ का फट्टा है, और उसने एक लकड़ का फट्टा खरीदा और उसके ऊपर दुआ शुरू कर दी। उसके ऊपर क्या शुरू कर दी? दुआ शुरू कर दी। उसने अपने घुटने अपने सजदे में सर को झुकाना शुरू कर दिया, और एक दिन जब मुल्क बदला था ना, तो जहां पे उसके घुटने थे वहां पे उस लकड़ के फट्टे में सुराख हो चुके थे। आप हिस्ट्री में देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड हैं जिन जब भी कुछ बदला है, जब भी कुछ बदला हुआ है, जब भी कोई मुल्क बदला है, तो वहां पे दुआ मरते दुआ उठे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यूं कहूंगा आप सारे मर्दे दुआ, आप सारी वुमेन मर्दे, आप दुआ करने वाले औरतें और दुआ करने वाले मर्द, आपको उठना है। बस आपको अपने अंदर के उस मसीह को जगाना है जो दुआ के लिए बुलाया गया है, जो दुआ के लिए, जो दूसरों की शफायत के लिए बुलाया। आपकी रगों में यीशु मसीह का ब्लड है, यीशु मसीह का खून है, तो वो खून तो लोगों के लिए ये दुआ करता है, पाप इनको माफ करते। ये जानते नहीं है ये इस तरह के गुनाह कर रहे हैं, और उनमें से बथेरे थे जो बाद में यीशु का प्रचार कर रहे थे। हम एक शख्स को जानते हैं जिसका नाम निकोदेमुस है। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह का प्रचार करता। हम उस शख्स को भी जानते हैं जिसने यीशु मसीह के लिखा कि उसने कहा मैं इस रास्तबाज के गुनाह से, खून से बरी हूं। उसने हाथ धोए और उसी के फैसले से यीशु मसीह को मसलूब किया गया। जानते सारे क्या वो यीशु मसीह को जब मसलूब, उसने जब हुक्म दिया है तो वो उसमें शामिल है। तो वो कह रहा है मैं तो बरी हूं भाई, वो तो सबके सामने हाथ धो रहा है, लेकिन उसे वो ये नहीं जानता कि मसीह ने क्या माफ को, अब उसकी भी माफी हुई है। और हिस्ट्री बयान करती है कि उस शख्स ने यीशु का बड़ा प्रचार किया था। उसने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। यीशु ने उनके लिए शफायत की थी। आप किसके लिए शफायत कर रहे हैं? आप किस गली के लिए शफायत कर रहे हैं? आप किस मोहल्ले के लिए शफायत कर रहे हैं? किस खानदान के लिए आप शफायत कर रहे हैं? कौन से? मैं जब सुबह यहाँ पे आया तो मैं सबको गिन गिन के बता रहा था कि अपने इर्द गिर्द के जितने भी एरिया हैं, वो अमीर एरिया है, वो गरीब है, सबके लिए शफायत करो कि खुदा दरवाजे खोल दे वहां पे। आमीन। मैं बता रहा था कि आप नाम ले सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस चर्च का रास्ता बैरियर टाउन के लिए खुलेगा, सफारी के लिए खुलेगा, कुरेस के लिए खुलेगा? कभी नेवर किसी ने दुआ नहीं की होगी। बहुत कम आप में से कम लोग होंगे जो इतने बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड एरिया के लिए दुआ कर रहे होंगे, लेकिन हम कर रहे हैं। दरवाजे खुले। हमें आपको बताना ये चाहता हूं कि हमें शफायत के लिए बुलाया है, हमें दुआ के लिए बुलाया है कि हम जाकर रखना में खड़े हो जाएं, हम जाकर मस्बा पे खड़े हो और हाथ उठाएं और कहें कि खुदा रहम कर इस एरिया पर, इस शहर पर, इस मुल्क पर रहम कर, और मेरा खुदा इस मुल्क को बहाल करेगा। आमीन।
जब हम शफायत करेंगे। शफायत करने वाले आज लोग चाहिए, आज हमें ऐसे लोग चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीनाकरण नाम से एक मिनिस्ट्री है इंडिया में। दीनाकरण नाम से एक मिनिस्ट्री है, उनकी समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जब उनकी ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में तो तब समझ आती है। वैसे उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां उनकी अपनी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स, यहाँ तक के छोटे छोटे जो स्कूल है जो गांव में भी होंगे वो भी इंटरनेशनल स्कूल उनके अपने होंगे। कैसे हो गया? और इंडिया की सबसे बिगेस्ट नंबर 1 पे वो मिनिस्ट्री है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री वो है। ऐसा कैसे हो गया? वो प्रेयर करने वाले लोग थे। जब उस मिनिस्ट्री का आगाज हुआ था तो आज जो उस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं उनके जो बाप थे, कहते हैं कि उनके बाप ने जिस दिन मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो जो आज पादरी साहब उस चर्च को चला रहे हैं ना, वो घर छोड़ के चले गए क्योंकि वो दूसरे मजहब से थे। उनका बेटा जो आज चर्च चला रहा है वो घर छोड़ के चला गया। आप चर्च शुरू करते हैं और आपका बेटा आपके घर को छोड़ के चला जाए, कैसे कर पाओगे? है ना मुश्किल। और उन्होंने मिनिस्ट्री का आगाज किया और दूसरी तरफ जब उन्होंने प्रेयर सेंटर का आगाज किया, एक तरफ उनकी बेटी का जनाजा था और दूसरी तरफ प्रेयर सेंटर। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चर्च के प्रेयर सेंटर है तो इसी मिनिस्ट्री के प्रेयर सेंटर। हम समझ पा रहे हैं? उनके चर्च हो सकता है कम हो लेकिन उनके प्रेयर टावर ज्यादा होंगे। प्रेयर टावर मतलब मान लो उनकी ये ब्रांच उनकी है नहीं, मान लेते हैं, और इसी के 2 प्रेयर टावर होंगे, इसी के 2 प्रेयर टावर होंगे। एक कहीं किसी मान लो इसी एरिया में होगा, एक किसी और एरिया में होगा। वहां पे लोग क्या करें? दुआ करें, और उनके दुआ करने के तरीके अलग है। मैंने उनको जब रिसर्च किया दुआ करने का, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ा शोर करते हैं या बड़े आराम से, तो तरीका जो असल जो मैं वो बता रहा हूं कि उनके हर प्रेयर सेंटर में वो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, और नक्शों के ऊपर हाथ रख के दुआ करते हैं। इंडिया बदल दे, चाइना बदल दे, पाकिस्तान बदल दे, नेपाल बदल दे, बांग्लादेश बदल दे। हम समझ रहे हैं? वो इस तरह से, और जहां उन्होंने प्रेयर सेंटर कायम करना होता है उस एरिया का खास मैप बनाते हैं, उसके प्रेयर करते हैं खुदा यहाँ पे प्रेयर सेंटर खोल दे। हम समझ रहे हैं? हमें एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें अब इन चीजों का आगाज अब हम करेंगे। सुनने में, देखने में एक तरह से ये कॉपी होगी, और अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए, हैं? सही है ना? कॉपी अच्छी हो जाएगी, पीले वाली कॉपी नहीं करनी चाहिए। कॉपी करो पर अच्छी करो, बेहतरीन करो, जो आपके लिए और आपके खानदानों के लिए, आपके घरानों के लिए अच्छी हो। और मैं चाहता हूं कि जब हम इसको फॉलो करेंगे, मैं यूं कहूंगा, कॉपी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हम इसकी पैरवी करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह, और एक्चुअली ये बाइबल की तालीम है। असल में हम उनकी नहीं, मैं सिर्फ उनको सामने रख के कह रहा हूं, असल में ये बाइबल की तालीम है। खुदा का बंदा इब्राहिम, लिखा खुदा का बंदा इब्राहिम जब दुआ कराता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते उसके पास से चले जाते हैं, उसे बरकत देते हैं कि तेरे आने वाले साल में बेटा होगा। उसके बाद फिर खुदा कहता है कि मैं जो वहां पे सदूम और अहूरा में कुछ करने वाला हूं, मैं अपने बंदा से क्या करूं? क्यों छुपाऊं? मैं अपने बंदा से इस भेद के बारे में बताऊंगा, मैं अपने बंदा से बात करूंगा। और खुदा ने किससे बात की? इब्राहिम से बात की। और देखो मुल्क कौन सा बर्बाद होने वाला है? सदूम और अमूरा। खुदा बात किससे कर रहे हैं? दूसरे मुल्क में एक शख्स बैठा है जिसका नाम इब्राहिम है, और खुदा उससे बात करे जो मजमा पर बैठा हुआ है। हालेलुया, जो मस्बा पर घुटने टेका हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो मस्बा पर बैठेंगे, कई दफा लोग कहते हैं कि खबरा सुन लेने आने वाले वक्त का पता चलता रहता है, लेकिन बाइबल का खुदा कहता है जब पाक रूह नाज़िल होगा तो वो तुझे आने वाली खबरों की बात बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इसलिए ये चर्च घुटनों में बैठेगी ताकि आने वाला टाइम इस चर्च को पहले और मीडिया को बाद में बताया जाए। हालेलुया। और हम जानते हैं, आप जानते हो कि आने वाली खबरें खुदा
बताता है चर्च को जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ खुदा ने पहले से बताया हुआ था। आमीन, हालेलुया। पर हमें ध्यान समझना है, खुदा उससे कह रहा है कि मैं इस बंदा से क्यों छुपाऊं, क्योंकि ये मेरा बंदा है, ये मेरे हुजूर बैठता है, इससे मैं बात करूंगा। और खुदा कहता है कि इब्राहिम मैं सदूम को क्या करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ, मैं सदूम को मारने वाला हूँ, सदूम को खत्म कर दूंगा। और इब्राहिम कहता है नहीं खुदा, ये अगर उधर वहां पे 50 रास्तबाज हुए तो क्या तू उन रास्तबाजों की खातिर क्या सबको छोड़ नहीं देगा? अगर इतने गुनहगारों के बीच में तू सबको मार देगा, खुदा कहता है अगर 50 हुए इब्राहिम तो मैं सारे मुल्क को छोड़ दूंगा, जा तेरी बात सुन लेते। हालेलुया। फिर खुदा का बंदा इब्राहिम कहता है खुदा गलती माफी, अगर वहां पे थोड़े और कम हुए 45 हुए, खुदा ने कहा जा ठीक है। फिर इब्राहिम कहते 40, फिर 35, फिर 30, करते करते 10 पे आ गया। जब 10 पे आ गया तो खुदा के बंदा ने फिर आगे शिफायत करना बंद कर दी। शिफायत करके निकल ही रहा था, शिफायत अपने रास्तबाज दोस्तों के लिए, ईमानदारों के लिए करा था। अब जब 10 कहा, असल में खुदा का बंदा ईमानदारों के लिए शिफायत करके वो बच गए और उनकी वजह से बाकी भी बच जाते। लेकिन वहां पे 10 भी नहीं थे, वहां पे थोड़े से लोग निकले, वहां पे 4 निकले और 4 में से फिर एक रह गया। शिफायत को निंदा अगर शिफायत ना करता तो ये 3 जो बच गए ना ये भी मर जाए। इसका मतलब यह है कि शरीयत से पहले ही लोगों के अंदर, हर जिसको मर्जी उठा के देख लो, जिस नबी जिस मैन ऑफ गॉड को उठा के देखो, उसके अंदर शिफायत का स्पिरिट होगा, उसके अंदर शिफायत करने वाली रूह होगी कि वो लोगों के लिए शिफायत कर सके। हालेलुया। मैं पिछले दिनों कलीसिया को बता रहा था कि खुदा का बंदा मूसा शिफायत कर रहा है कौम के लिए। खुदा का बंदा मूसा गया है पहाड़ पे और पहाड़ पे 40 दिन लग गए और पीछे कौम ने कहा कि पता नहीं हाय मूसा कितने तर गया, लग रहे पादरी साहब गायब हो गए, ये पहाड़ पे चले गए हैं, लग रहे एक चलो पीछे बंदोबस्त करो। ऐसे ही होता है ना, बंदोबस्त कर लिया उन्होंने, पर बंदोबस्त जो किया वो भी गलत बंदोबस्त कर लिया। वह किसी अल्टर को खड़ा कर लेते, किसी मुबशर को खड़ा कर लेते, पादरी साहब तो चले गए हैं, चलो तुम आज के बाद हमें लीड किया करो। ये भी समझ में आता, चलो ठीक होता, चलो कम से कम किसी चुने हुए शख्स को तो खड़ा करते। खड़ा किसको कर लिया? बछड़े को खड़ा कर लिया और सोने का बछड़ा बना लिया। मूसा उधर दुआ कर और खुदा मूसा तक मूसा तो ले जाने की। जब मूसा नीचे आता है तो देखता है कि नीचे बड़ा पाप हो रहा है, बड़ा गुनाह हो रहा है और खुदा का सब नाक होता है। खुदा कहता है अब मैं सारी कौम को क्या कर दूंगा, क्या करूंगा? मैं सारी कौम को मार दूंगा, मैं इनको गलत कर दूंगा, इनको फिनिश कर दूंगा। और वो कोई 1-2 लोग नहीं थे, वो लाखों की चर्च थी। कितनी? इतनी बड़ी चर्च अभी तक आज तक नहीं चर्च आई। कभी कोई इतना बड़ा क्रूसेड भी नहीं हुआ, इतने लाखों का, जितने लाख मूसा लेकर निकला। ये दुनिया की सबसे बड़ी और हिस्ट्री की सबसे बड़ी चर्च थी जो मूसा लेके चलता। सब दुनिया की सबसे बड़ी और हिस्ट्री की सबसे बड़ी चर्च जो थी मूसा की थी। और मूसा उनको लेके चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? गलती कर दी। अब खुदा का बंदा मूसा शिफायत करता है कि हाय खुदा, इन्होंने गुनाह कर दिया है, लेकिन अगर तू इनको मार देगा तो तेरे वादे जो तूने इब्राहिम से किए थे कि तेरी कौम को वहां पे, तेरी नस्ल को वहां पे लेके जाऊंगा, खुदा वो वादे खत्म हो जाएंगे। तो खुदा कहता है कि नहीं, अब मैं तुझसे एक नस्ल पैदा करूंगा, मैं उस कौम को लेके जाऊंगा। तो बंदा कहता नहीं, इनका गुनाह माफ कर, तू इन पे रहम कर। अगर इनका गुनाह माफ नहीं करना तो मेरा नाम किताब में से मिटा दे। वो इतना बड़ा चर्च का पादरी होना ना कोई मजाक नहीं था। और मैं समझता हूं अगर मूसा इतनी बड़ी चर्च का नबी था ना तो उसके अंदर दिल भी उतना ही बड़ा था। कहता है खुदा मेरा नाम उस किताब में से फिनिश कर दे।
اور وہ کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ میں ایمان سے کہوں گا کہ وہ کتاب حیات ہے. اس کتاب میں جس کا ذکر خدا کا بندہ موسیٰ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں مکاشفہ کتاب میں جس کا ذکر ہے کتاب حیات، وہ موسیٰ اس کتاب کی بات کر رہا ہے. مطلب وہ موسیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آسمان کی بات سے ان لوگوں کے لیے چھوڑنے کے تیار ہوں اگر ان کا گناہ تمہیں معاف. بات سمجھ رہے ہیں؟ اجدہ پادری اس وقت کا موسیٰ، فرق آپ سمجھ لو. وہ موسیٰ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آسمان کی بادشاہی کو چھوڑنے کے ریڈی ہے کہ خدا ان کا گناہ کیا کر دے، معاف کر دے. شفاعت کنندہ تھا نا، شفاعت کنندے جو ہوتے نا وہ زبردست لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے اندر کے موسیٰ کو جگاؤ، ان کے لیے شفاعت کی گئی، ان کو اس ٹائم معاف کر دیا، فی الوقت ان کو معاف کیا گیا تھا. صرف اگر سوچو موسیٰ نہ کھڑا ہوتا، سوچو خدا کے لوگوں، اگر یسوع ان کے لیے نہ کہتا باپ ان کو معاف کر، کبھی نیور ان کی معافی ہوتی نہ اور وہ خدا کا جلال بھی ظاہر نہ کرتے. اگر میں معاف نہ کیا جاتا تو آج کوئی میرے لیے دعائیں نہ کرتا. میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتا، خداوند اس خادم کو مجھ سے زیادہ بلیس کرنا، مجھ سے زیادہ اس کو ہر طرح سے مجھ سے زیادہ گروتھ ان کی ہو. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے وہ پریئرز کرتے رہے، میرے لیے وہ روزے رکھتے رہے اور میرے لیے اس شہر میں آ کے مجھے ایونجلزم کی، مجھے میرے ساتھ بات کی. اور آج میں مسیح میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہ آتے میری زندگی کو وہ نہ بدلتے. اس لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو شفاعت کر سکے. آج اصل میں آپ کو اس بات پہ لایا جا رہا ہے کہ آپ شفاعت کنندے بنے. آمین. مجھے بتایا گیا کہ ہمیں لیڈیز پریئر میٹنگ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی صرف وہاں پہ صرف اور صرف بہنیں ہوگی. کوئی وہاں پہ جہاں پہ ہوگی اس گھر کے لوگ صرف ہوں گے بس، اور کچھ بھی وہاں پہ کوئی بچہ تک وہاں پہ نہیں ہوگا، نہ بڑے لوگ ہوں گے وہاں پہ، صرف اور صرف بہنیں ہوں گی. بہنیں پریئر الگ کریں گی اور بھائی پریئرز الگ کیا کریں گے. الگ الگ سیشن آپ کے ہوں گے. آپ چرچ میں یہاں کے بہنیں کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ اپنا کوئی بھی مل کے کوئی دن رکھ لو تاکہ آپ قوموں کے لیے، شہروں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، سب کے لیے شفاعت کر سکو اور مل کر شفاعت کر سکو. آمین. 120 کی جماعت جب شفاعت کرتی تھی اور پھر وہ 10 دن صرف انہوں نے دعا کی تھی، اور جب خدا کے بندہ مرد خدا نے دعا اور کلام سنایا تو لکھا کہ 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. آمین. آپ چرچ میں بھی آ کے بہنیں دعا کر سکتی ہیں. آپ کوئی ٹائم رکھ لو، بہنیں آپ بھی چرچ کے بعد بات کر سکتی ہیں ایک دوسرے سے. کوئی بہن ان کو لیڈ بھی کرے اور باقی سب دعا کرے. آمین. ہم سمجھ پا رہے ہیں؟ مطلب ہمیں ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھرانے بدلے تو آپ کے گھرانے کے بدلنے کی ایک چابی ہے اور وہ دعا ہے. آپ کی ہر پرابلم کا حل دعا میں ہے. آپ کی غریبی دعا سے ختم ہوگی، آپ کی بیماری دعا سے ختم ہوگی، آپ کے حالات دعا سے حل ہوگے. آپ کا ہر مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ دعا ہے. ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف پریئر سے. آپ کو پریئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پریئر کی ضرورت ہے. اس چرچ کو پریئر کی ضرورت ہے. بہت ساری ڈھیروں لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف دعا کر سکتے، جو صرف دعا کر سکتے. ہاللیلویا. کیا آپ ریڈی ہیں دعا کرنے کے لیے؟ اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں. آپ اپنے محلے میں بھی کسی گھر میں ارینج کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ دعا کریں بس. آپ چرچ میں کریں، آپ گھر میں اپنی گلی میں 8-10 لوگ بیٹھ جائیں، 8-10 بہنیں بیٹھ جائیں، 8-10 بھائی بیٹھ جائیں. دعا کریں بس. کوئی ایک ٹائم رکھ لو تاکہ آپ دعا کر سکیں.
जिन घरों का एक ही गले में आपस में रिलेशनशिप सही है, वो लोग मिल के दुआ कर लो। आमीन। और आपको दुआ की जरूरत है, यू नीड, आपको बहुत सारी जरूरत है दुआओं की। इस चर्च को बड़ा, आप अगर हम चाहते हैं कि इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज हैं, बड़े बड़े जो मोहल्ले हैं, वो सब आपकी चर्च के साथ जुड़े, उनके नाम लेकर दुआ करना शुरू करो। हर मोहल्ले को, हर गुलरेज को, ये आपके जो इस साइड पे है, इसका नाम क्या है, गुलिस्तान कॉलोनी, इसका नाम लो। आपके यूसुफ कॉलोनी है, वहाँ पे झंडा चीची है, अब सर सैयद चौक है, आप हर जगह के नाम लेके उनके लिए दुआ कर सकते हो। खुदा इन एरियाज में दरवाजे खुल जाए। आमीन। जिन एरियाज के आपको नाम आते हैं, स्मार्ट है, मोरगा है, वहाँ पे आप उनके नाम ले सकते हैं। शरून कॉलोनी है, डॉक्टर कॉलोनी है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। और वहाँ की गलियों का भी मुझे पता होगा। वहाँ पे हमारे मेंबर्स नहीं है, मैं वैसे ही जाता हूँ, मैं वैसे ही जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ और दुआ कर रहा हूँ तो यहाँ पे तब्दीली आए। आप समझ रहे हैं? मेरा वहाँ पे मेंबर्स कोई नहीं है, पर मैं वैसे ही कभी कभी जाता हूँ उन एरियाज में कि यहाँ से रोड इधर जाती है, यहाँ से रोड इधर जाती है, क्यों जाता हूँ वहाँ पे? मैं चाहते जाते गैर जुबानों में दुआ करता हूँ ताकि खुदा यहाँ पे तब्दीली, बेदारी का लेकर आए। आमीन। आप अपने घरों में उन एरियाज के लिए दुआ करेंगे, और मैं टीम से दरख्वास्त करूंगा कि कहीं से आप सबसे दरख्वास्त की जाती है, आप वो मैप, वो नक्शे ढूंढे जहां से पाकिस्तान का नक्शा मिलता है। आप समझ रहे हैं? आपको सिर्फ ढूंढना है, बताना है, ले हम खुद ही आएंगे, खरीद हम लेंगे, पैसे हम लगा लेंगे, आपको सिर्फ बताना है कि फलां जगह से मिल जाते हैं, हमने वहां पे देखे। और वहां वो उन लोगों को दिए देंगे जो प्रेयर करने वाले, और जो 10-12 लोग मिलकर दुआ करते हैं, उनको 1-2 दिया जाएगा ताकि वो हाथ रख के उन जगहों मुल्क के लिए क्या कर सके, दुआएं कर सके, शिफायत कुनिंदे बन सके आप। और शिफायत कुनिंदे आम नहीं होते, वो रास्तबाजों से ऊपर लेवल के होते हैं, बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनका दिल, उनका हार्ट बड़ा होता है, वो सिर्फ अपनी चर्च वास्ते दुआ नहीं करते, हालेलुया, वो सिर्फ अपनी चर्च के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं? आपको शिफायत कुनिंदे बनना है, और वहीं पे आप अपने लिए भी दुआ कर पाएंगे, अपने घराने के लिए भी, अपने खानदान के लिए, अपनी चर्च, सब के लिए दुआ कर पाएंगे। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं।